Good morning, everyone. In today's 9th class computer science, I will teach you again chapter number 1. And in previous class, I have given the introduction of the chapter, that is basics of computers. We'll go further ahead of this chapter. And what I'm doing here, I have scanned the pages of chapter number 1, and I will display that onto the screen by screen share method, and that will be visible to you. You can just go through those pages because basics of computers are basically a theoretical chapter. So all the theories will be visible to you on screen, and then I will start explaining you the points which are given. So I'll share first of all screen for you, and then I'll explain the terms which are there. So screen is shared for you. Okay. And now I'll open the folder where I have saved the files. Just see here. And I think in I have given you the name class 9. This is chapter 1 I am teaching. So we'll start with the first page. Just wait for a minute. Okay. So see here, introduction is opened here. Introduction, overview of computer technologies, what is a computer, characteristics of computer, classification of computers, basic of computer and its operation, functional components and their interconnection. Introduction. So this I have already explained, so I'm not going to repeat it again. Now I'll go for the next page. The next page is, that is 1.2 overview of computer technologies. This I have already explained in my previous class, and then information and communication technology we were discussing. And this also I have explained. You can check my video. Information technology, then we have come. Information technology is the study, design, development, implementation, support, or management of computer-based information system, particularly software applications and computer hardware. It deals with the use of electronic computers and computer software to convert, store, protect, process, transmit, and retrieve information securely. What is computer? Definition I have already given. And then I told you about, I will explain the characteristics of computer. This way, the method, see, I am teaching you is easy to learn. See here, characteristics of computers. Computers have some remarkable features which have made them so popular. These features are basically the reasons for which the computers are originally built. These features are automatic. So you know that computers are automatic machines in the sense that once started on a job, they carry on until the job is finished. Normally without any user's help. अब यहाँ जो without user helps का मतलब ये नहीं होता कि कंप्यूटर सब कुछ अपने आप करता है. That means all the instructions are previously given to the computer, and according to those instructions, it works automatically. So it's written here also, but computers cannot start themselves. They have to be instructed. That instructions are given to specify the way of the job's completion. Speed, you know that it works very fast because once the instructions are given, it works very fast. Rather work much more faster than a human being. Okay, like printing and calculating and all that. So the computers can work at enormously high speeds. They are capable of taking logical decisions, performing arithmetic and non-arithmetic operations on alphabets, and copying at unbelievable. I'll come to the next page. Just hold on.
Just wait. Page is opening. Now see here, enormous speed. While taking about the speed of a computer, we do not talk in terms of seconds or even milliseconds, uh, in terms of seconds or even milliseconds. That is 10 to the minus. For a computer, the unit of the speeds are microseconds. That is 10 to the power minus 6, and nanoseconds are 10 to the power minus 9. And even picoseconds, that is 10 to the power 12, minus 12. A powerful computer can perform 3 to 4 million simple instructions operations per second. The reason for this extremely fast speed of a computer can be attributed to the fact that a computer is an electronic device that operates on electronic signals known as electric pulses. These pulses travel at extremely high speeds and hence the fast speed of computers. Accuracy. The computer produces highly accurate and reliable results. In majority of cases, the accuracy is close to %, है ना. Most of the ऐसा तो होता नहीं कि जो आप फिगर डालें उसके अलावा कुछ और आ जाए. Suppose you are putting like you want to withdraw 10,000 rupees from ATM and it is giving 9,000 or it is giving 11,000. It is not like that. So accuracy is there. While calculating also, we get the perfect result of calculating the result, or being any financial accounting, we get the accurate results. So I'll go ahead. Versatility, versatile machine है, बहुत सारे काम कर सकती है. A computer is capable of performing a wide variety of functions. It can accept data, it can perform the fundamental arithmetical operations, it can perform logical operations, and it can transfer data internally. Now arithmetical operation का मतलब होता है plus minus multiply divide, and logical operation का मतलब होता है where we check that value is greater than, less than, equals to, not equals to. And beside that we also have the operation logical operators, not, and, or, etc. Then comes diligence. Diligence का मतलब होता है कि ये थकता नहीं है, ये kept on working. Non-tiring machine. A computer is capable of performing the same task over and over again with the same degree of accuracy and reliability as the first one. This is because unlike human being, a computer is free from monetary tiredness, lack of concentration. Like हम कोई भी काम बार बार करते हैं तो हमारे अंदर टायर्डनेस भी आती है और lack of concentration भी आता है. But कंप्यूटर ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको दे दो जो काम दिन भर करता रहेगा. जब हार्डवेयर फेलियर होगा तभी जाके कंप्यूटर स्टॉप अपना काम करेगा, या कुछ सॉफ्टवेयर में भी प्रॉब्लम हो जाए तो भी कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा. और यू कैन से कि पावर नहीं होगा तो फिर कंप्यूटर वर्क नहीं करेगा. लार्ज एंड परफेक्ट मेमोरी. हमारी मेमोरी लिमिटेड होती है, हम बहुत सारी चीजों को एक साथ याद नहीं कर सकते. हम कंप्यूटर में हम इतनी मेमोरी आज के सिस्टम में है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मेमोरी, कि आप कितने भी डेटा को स्टोर कर सकते हो. So as a human being, our ability to acquire and retain knowledge is limited, but this is not the case with computer. Computer can store and recall any amount of information because of its secondary storage, secondary matlab hard disk, etc. with perfect accuracy. Even after several years, the information recalled by will be as accurate as on the day when it was fed onto the computer. So अब जो memories है, you know, gigabytes में external memories हैं and terabytes में है. नो IQ. कंप्यूटर के पास कोई IQ नहीं होता है. कंप्यूटर वही काम करता है जो हम इंस्टाग्राम पहले भी बता चुके. लाइक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू a plus b is used to sum, बट गलती से अगर हमने माइनस कर दिया, इवन द प्रोग्राम इज टू ऐड, इट विल गिव यू सब्ट्रैक्शन. इसको इससे मतलब नहीं होता है, जो इंस्ट्रक्शन होता है उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करता है. तो cannot take decision on its own. Only the user can determine what task the computer will perform. So that computer has no IQ. No feeling. Computers being machine have no feelings. A human being has feeling and can take decisions, but the computer take decisions on the instruction provided to them in the form of programs written by the user. Okay. तो आप ये नहीं सोचो कि यार ऐसा कुछ हो सकता है जैसे हमारे अंदर कुछ होता है. Even being a teacher will take, we see that कि बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा है, उसकी राइटिंग अच्छी है, और एक की किसी की राइटिंग उतनी अच्छी, जो राइटिंग का मार्क्स डिफरेंशिएट कर देते हैं. बट ऐसा कंप्यूटर में ये कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शन है, जैसे आजकल जो कॉपी चेक होती है OMR शीट वगैरह में, तो किसी ने अच्छे से सर्कल लगाया हो, किसी ने जैसे भी लगा, उसको तो सिर्फ सर्कल से मतलब है.
कि उसने उसको डार्कन किया है या नहीं किया है। तो उसके पास कोई फीलिंग ऐसी नहीं होती जो नॉर्मली टीचर्स के अंदर फीलिंग्स होती हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। उसके लिए सब बराबर है और उसको सिर्फ रिजल्ट से मतलब होता है। जिसने करेक्ट किया है करेक्ट है, जिसने नहीं किया है उसका कोई मतलब ये नहीं होता कि आगे वो अच्छा कर सकता है, उसको ज़्यादा करना चाहिए या कम करना चाहिए, या उसका आज के दिन रिजल्ट खराब हो गया, पहले तो वो अच्छा था तो उसको उस हिसाब से मार्क्स दे देना चाहिए। कंप्यूटर ऐसा कुछ भी नहीं सोचता है। Next point is classification of computers. Computers are classified into various types based on historical development, computer generations, purpose to technology use, size and storage capacity and so on. तो अभी इसकी पूरी फिगर दी हुई है, जिसे आप देख लीजिए यहाँ पर। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है। जस्ट मिनट, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर गिवन हियर। Classification of computers based on historical development, purpose, technology used, size and capacity. देखिए अब हिस्टोरिकल एविडेंस में जो आता है आपका, या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड fifth generation computer. We are working on fourth generation and fifth generation, basically more on the artificial intelligence. Purpose, अभी आप ये चीजें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और पहले के बेसिक पॉइंट्स को समझ लें कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर मैं आपको आगे, पहले इनको पॉइंट्स को यहाँ जो दिया हुआ है इसको आप समझ लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हियर नेक्स्ट इज पर्पस, टेक्नोलॉजी यूज एंड साइज एंड कैपेसिटी। अगर आप पर्पस वाइज जाएंगे तो दो तरह के पर्पस वाइज कंप्यूटर होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। आप जो कंप्यूटर अपने घर में लैपटॉप, डेस्कटॉप एक्सेट्रा यूज करते हैं, ये सारे जनरल पर्पस हैं। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर यूज फॉर सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क, जैसे मान लो कि वेदर मॉनिटरिंग है या वेदर प्रेडिक्शंस के लिए जो कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं, वो सारे स्पेशल कंप्यूटर, या सपोज मिसाइल गाइडेंस के लिए हैं या कुछ और प्रोग्राम्स के लिए हैं, सच एज सम डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर्स एक्सेट्रा, तो वो सारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर मैंने कहा जैसे आपका लेक्चर है, जनरल पर्पस जो स्पेशल कंप्यूटर्स होते हैं स्पेशल पर्पस, वो एक स्पेसिफिक जॉब को ही करते हैं, वेयर एज जनरल पर्पस कैन डू वैरायटी ऑफ टास्क, वैरायटी ऑफ जॉब्स। टेक्नोलॉजी यूज्ड, डिजिटल कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर्स कौन से हैं, बेसिक चीजें आप अच्छी तरह समझ लो, फिर बाद में बुक्स में दिया ही हुआ। डिजिटल कंप्यूटर्स जीरोस एंड वंस पे वर्क करते हैं, जो बाइनरी डिजिट्स पे वर्क करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स कहलाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर वो होते हैं जो फिजिकल क्वांटिटीज पे वर्क करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क्स ऑन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज से क्या मतलब है कि आपका जैसे साउंड है, वेव्स है, और आपका लेंथ है, ठीक है, वेट है, ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज कंसीडर किए जाते हैं। तो जो इनके ऊपर वर्क करता है वो आपका एनालॉग कंप्यूटर है। वेइंग मशीन है, थर्मोमीटर है, ये सारे जो टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है, ये सारे आपके एनालॉग कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आएंगे। हाइब्रिड कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, जिनमें डिजिटल एज वेल एज एनालॉग फीचर्स होते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि कुछ ऑपरेटिंग मशीन होती हैं, या कुछ वर्क तो एनालॉग फैशन में होता है, कुछ डिजिटल फैशन में होता है, ठीक है। उसी तरह अगर आप एक टेलीविजन को देखें तो जो पिक्चर्स वगैरह शो हो रही हैं वो एनालॉग फैशन में होगी, मगर उसमें जो प्रोग्रामिंग है, जिसमें आप एक स्क्रीन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, आप और भी बहुत सारे फीचर्स यूज कर सकते हो, वो सारे डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। वॉशिंग मशीन है, उसमें एनालॉग फैशन भी और डिजिटल भी दोनों तरह से बनते हैं। तो देज आर हाइब्रिड कंप्यूटर्स, जहाँ पे एनालॉग भी होगा और डिजिटल भी होगा। साइज एंड कैपेसिटी, तो सुपर कंप्यूटर्स ऑब्वियसली सुपर है, सबसे ज्यादा साइज है, सबसे ज्यादा मेमोरी है। मेन फ्रोम स्टोरेज पर्पस के लिए यूज किया जाता है। मिनी फ्रेम बहुत सारे पर्पसेस है, वेदर फोरकास्ट एक्सेट्रा के लिए भी यूज करते हैं। और पीसीज जो हम नॉर्मली अपने घर में यूज करते हैं, दैट इज माइक्रो। ओके, तो मैंने एक जनरल सा बहुत जल्दी से आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दिया क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब जब आप बुक में पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल आपको दी हुई है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, इन्होंने यहाँ पर नीचे कंप्यूटर्स जनरेशंस के बारे में बताया है, इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942 से 1955 तक का पीरियड था। वैक्यूम ट्यूब्स और इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक रिले मेमोरी, पंच कार्ड, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी थी। इसमें बेसिक सॉफ्टवेयर जो यूज हुआ था मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जीरोस एंड वंस बाइनरी लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ मेनोमोनिक कोड्स कहते हैं, मतलब बहुत सारे कोड्स को मिला के, जैसे आप अभी यूज करते थे लोगो जिसमें एफ डी आर डी बी के इस तरह से कुछ कमांड्स होते थे, तो वो एक असेंबली लैंग्वेज थी। ठीक है, मोस्टली साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए यूज किया गया था। और इसमें जो बल्कि साइज था हाईली अनरिलायबल था, बहुत अच्छी इनकी स्पीड नहीं थी, बहुत स्लो प्रोसेसिंग थी और रिजल्ट भी एक्यूरेट नहीं आते थे। इनको यूज करना भी आसान नहीं था, कमर्शियल पर्पज में यूज नहीं किया गया था या डिफिकल्ट था यूज करना। इनके नाम याद रखना है, एनैक, एडवैक, एडसैक, यूनिवैक, आईबीको। सेकेंड जनरेशन में है ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क, सेकेंडरी स्टोरेज। ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज हुए थे। ट्रांजिस्टर आ चुका था सेकेंड में। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब क्या हुआ कि जैसे हमें 4, 5, 6, 10 कमांड को एक साथ एग्जीक्यूट करना है, तो उसको हम एक बैच फाइल में डाल देते थे और उसको जब एग्जीक्यूट करते थे तो सारी फाइल्स एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो जाती थी। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज स्टार्ट हो गई थी इस वक्त और साइंटिफिक एंड कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होना शुरू हो गया था सेकेंड जनरेशन। ये ऑब्वियसली पहले से बहुत फास्टर था, उससे कम स्मॉलर साइज था, रिलायबल था, इजियर प्रोग्रामिंग थी और प्रीवियस से और कमर्शियल प्रोडक्शन वाज डिफिकल्ट। अभी कमर्शियल में उतना यूज नहीं हुआ। नाम कुछ याद रख सकते हैं, हनीवेल, आईबीएम, सीडीसी, यूनिवैक एक्सेट्रा। एग्जैक्टली क्वेश्चन आंसर्स में क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देन हियर कम्स द थर्ड जनरेशन। इसमें आईसीज मतलब इंटीग्रेटेड चिप्स आ गई, एसएसआई एंड एमएसआई टेक्नोलॉजीज हैं। एंड देन लार्ज मैग्नेटिक कोर मेमोरी आ गई, लार्ज कैपेसिटी मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप, सेकेंडरी स्टोरेज एंड मिनी कंप्यूटर्स। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होना शुरू हो गई थी। अनबंडलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर फ्रॉम हार्डवेयर। ठीक है, faster, smaller, more reliable, easier, cheaper to produce commercially, easier to use and easier to upgrade than previous generation system। साइंटिफिक और कमर्शियल पर्पज में यूज होना शुरू हो गया था और ऑनलाइन एप्लीकेशन, इंटरेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन भी शुरू हो गई थी। आईबीएम, आईडीपी, पीडीपी एंड सीडीसी ये सारे सिस्टम थे। अब आपको जो इंटरेस्ट वाला है आईसीज एंड वीएलएसआई। वीएलएसआई मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का ही एक लार्ज फॉर्म आ गया, मतलब और ज्यादा इंटीग्रेट हो गई, सर्किट्स बहुत छोटी हो गई और उसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज हुए, सेमीकंडक्टर मेमोरी, लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क एज इन बिल्ट सेकेंडरी स्टोरेज यूज हुई, जो अभी भी आप यूज करते हैं। मैग्नेटिक टेप्स एंड फ्लॉपी डिस्क यूज हुई थी, जो अब फ्लॉपी डिस्क वगैरह यूज कम हो गई हैं। ठीक है, पर्सनल अभी भी जैसे मैग्नेटिक टेप स्टोरेज पर्पस के लिए यूज करते हैं। स्प्रेड ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटर्स यहाँ से शुरू हुआ। ऑपरेटिंग सिस्टम्स में यहाँ पे डॉस वगैरह आ गए थे, यूनिक्स आ गया था और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आज भी पॉपुलर है वो स्टार्ट हो गई थी, दैट इज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट हो चुकी थी इस एज में। ठीक है, और स्मॉल अफोर्डेबल डिवाइस जो आज कंप्यूटर आपको दिख रहे हैं, ये फोर्थ जनरेशन के बाद के ही कंप्यूटर्स आपके सामने हैं। IBM PCs एंड इट्स क्लोन, एप्पल आ गया था एंड सो ऑन। फिफ्थ जनरेशन में आपका आईसीज एंड ULSI यूज होना शुरू हुई हैं। अब ULSI का फुल फॉर्म देख लेते हैं। ULSI, फुल फॉर्म स्टैंड्स अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो अगर अभी कोई आपको एब्रिविएशन नहीं मिलता है तो यू हैव द फैसिलिटी ऑफ गूगल वेयर यू कैन सर्च and easily get the full form, US ultra large scale integrated circuits. So larger technology, microprocessor, semiconductor memory, large capacity of hard disks as in built-in secondary and so on। अब आप जो यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ULSI पे थे, सॉरी फिफ्थ जनरेशन ULSI पे थे।
टेक्नोलॉजी, लार्जर कैपेसिटी मेन मेमोरी, लार्ज कैपेसिटी हार्ड डिस्क एक्सेट्रा। वर्ल्ड वाइड वेब आपका आ गया प्लेटफॉर्म, ठीक है। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, इंटरनेट बेस्ड पोर्टेबल कंप्यूटर्स, मोर पावरफुल, चीपर, रिलायबल। IBM नोट पे पेंटियम्स आ गए थे सारे, वर्कस्टेशंस, SGI ओरिजिन, परम जो आपका इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, विप्रो, सुपरनोवा, ये सारी चीजें जनरेशन कंप्यूटर की बात है, ठीक है। तो ये आपके टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने थोड़ा बताया। नेक्स्ट आपका आ जाते हैं based on purpose. Depending upon the purpose of use, the computers can be for generation purpose or special purpose. मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया था। General purpose computers are the computers that can be used for all general needs of environments and users. These are the versatile computers that can perform a variety of jobs for a variety of environments. The programs or instructions are fed to them at the time of execution. These computers process these instructions and produce meaningful results. For example, a personal computer that is capable of calculating accounts data, preparing student result, designing, मैंने बताया था बहुत सारे काम के लिए यूज किया जाता है। Special purpose are the computers that are specially designed to perform a specific task। मैंने आपको समझा दिया है, स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज किया जाता है। Specific task of a specific environment. These are designed to perform tasks. Example इन्होंने दिया नहीं, देख लेते हैं। देखिए मिसाइल गाइडेंस का कुछ प्रोग्राम दे दिया। ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए मिसाइल कैन बी ओनली यूज फॉर द पर्पस एंड कैन नॉट यूज फॉर प्लेइंग गेम्स। ओके, पता चला आप गेम खेल रहे हैं और मिसाइल कहीं और फायर हो गया। अ कंप्यूटर दैट हैज बीन डिजाइंड टू काउंट द टेलीफोन्स कॉल पल्सेस। बिसाइड दैट मैंने आपको वेदर रिपोर्टिंग एंड मेट्रोलॉजी वगैरह में भी यूज किया जाता है। तो वो सारे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं। बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड मैंने आपको समझाया है, फिर भी मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। डिजिटल कंप्यूटर्स आर mainly general purpose computers that represent and store data in discrete quantities or numbers. In these computers, all processing is done in terms of numeric presentation, binary digits of data and information. Okay. Although the user enters data in decimal or characters form, they are converted into binary, zeros and one, and almost all of the computers being used these days are digital computers. For example, PC lab, laptop, etc. PC computers are several types: desktop PC, towers PC lab, etc. and personal digital. ठीक है ना। अब इसको मैं क्या एक्सप्लेन करूं, आप देख रहे हैं सब कुछ जो आप यूज करते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स है। ये काफी एक्यूरेट होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं, वैरायटी ऑफ टास्क कर सकते हैं, वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए यूज हो सकते हैं। तो बहुत कुछ है, नोटबुक वगैरह सब कुछ, लैपटॉप, डेस्कटॉप सब आपके डिजिटल कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर, analog computers are special purpose computer that represents and store data in continuously varying physical quantities such as current, voltage, frequencies, temperature, etc. These computers are programmed for measuring physical quantities like pressure, temperature, speed, etc. and to perform computations on these measurements. Analog computers are mainly used for scientific and engineering purpose. Some of the example मैंने आपको बताया था, थर्मामीटर है, नेक्स्ट आ जाइए स्पीडोमीटर है, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर, वोल्ट मीटर है, ये भी एनालॉग कंप्यूटर है। वोल्ट मीटर, थर्मोमीटर, स्पीडोमीटर, मैंने तो बहुत सारे एग्जांपल बता दिए आपको। हाइब्रिड कंप्यूटर जो दोनों के फीचर्स को एक साथ रखता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। जैसे कि इन्होंने ATM मशीन है, उसके बारे में भी आप कह सकते हैं कि ये हाइब्रिड मशीन है, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीजें एनालॉग फैशन में होती हैं, कुछ डिजिटल जो आप स्क्रीन वगैरह पे टच वच करते हो चलाते हो तो वो एनालॉग डिजिटल है। मगर बाकी चीजें जैसे मनी की काउंटिंग है एक्सेट्रा वो सारे डिजिटल होते हैं। और many counting machine, teller machine, the money counting machine is used to bank for counting. The ATM is self सर्विस। मैंने ऑपरेशन वाला एग्जांपल दिया था जहाँ पे कुछ डिवाइसेस आपके डिजिटली यूज होती है। ऑपरेशन जैसे डिजिटल फैशन में था, मगर मेन टाइम टेम्परेचर भी लेना पड़ता है, ब्लड प्रेशर भी चेक करना पड़ता है, तो वो एनालॉग फैशन में है। मगर आजकल ठीक है, आप कह सकते हैं कि बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गई है जो इलेक्ट्रॉनिकली ही आपकी चीजों को चेक कर लेता है। नेक्स्ट इज बेस्ड
on size and capacity. Computers are classified into different types depending on the memory size, cost, processing. बस ये मैं लास्ट लूंगा, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है कि थ्योरेटिकल है। एक दो क्लास के अंदर मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा एंड देन आई विल गिव यू द क्वेश्चन आंसर्स। आज ये मैं लास्ट पार्ट ले रहा हूँ और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं डिटेल पढ़ाऊंगा, ओके, और इसके बारे में क्वेश्चन आंसर्स भी। So computers are classified into different types depending on the money's memory size, cost, and processing. Every computer has central processor, secondary storage, input-output devices, personal information system, work group system, organization-wide system. Microcomputers और PCs आ जाते हैं personal information system में, work group system में आ जाते हैं mini और mid-range computers, और ऑर्गेनाइजेशन वाइज सिस्टम में आ जाते हैं मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स। मैंने पहले ही बताया कि मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स ये काफी हाई स्टोरेज कंप्यूटर्स होते हैं, वेरी फास्ट एक्यूरेट सिस्टम्स हैं, और ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज होते हैं। हर कोई अफोर्ड नहीं पड़ता, इनकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है, या तो मल्टीनेशनल से अफोर्ड करती है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसके बारे में मैं तीनों का एग्जांपल लेके खत्म करूंगा। द बिगेस्ट supercomputer, biggest in size, the most expensive price that any other is classified known as supercomputer. It can process trillions of instructions in a second. The computer is not used as PC in a home, है ना। ये तो बेवकूफी वाली बात है कि आप कोई पीसी क्यों इतना करोड़ रुपए लगा के क्यों खरीदेगा जब उसका काम आराम से हो जाता है, क्योंकि स्पेशल पर्पज अगर है तो ठीक है। एग्जाम्पल्स है इंडिया में परम है, अनुराग, ये सब बने हैं, और एक विप्रो इन्फोटेक हैज डेवलप्ड सुपरनोवा सुपर कंप्यूटर्स। इसके अलावा रे 3 है, हाईटेक है, एक्सेट्रा। मेन फ्रेम अनदर जायंट इन कंप्यूटर्स आफ्टर द सुपर कंप्यूटर्स मेन फ्रेम which can also process millions of instructions per second and capable of accessing billions of data, ठीक है। दिस इज नॉर्मली टू एक्सपेंसिव एंड आउट ऑफ रीच फ्रॉम अ सैलरी बेस्ड पर्सन। इसके उनका इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। बेसिकली ये स्टोरेज पर्पस के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन, करोड़ ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप समझ जाएं, वो स्टोर करनी हो, तो उसके पर्पस के लिए मेन फ्रेम यूज करते हैं। द कंप्यूटर्स इज नेक्स्ट इन लाइन बट ऑफर्स less than mainframe work and performance. These are the computers which are mostly used by the small type of business personnel, colleges, etc. Few examples are these. I will keep my class till here, and please go through all the concept. After completion of the theoretical part, all the points, I will go for the question answers, fill in the blank, match the following, whatever is there, I will give it to you. Okay, so आपका सारी चीजें मिल जाएंगे. Keep watching my videos, and that will be uploaded on your channel. Okay, take care. Bye. We'll meet in the next class. Till then, goodbye. Have a nice day. Bye.